परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी बख्शिश दे नाल गुरु दरबार दीआं हाजरियां भर के जन्म दे कुछ पल सफलियां करन दे यतन करदे हां। मेहरबान परमात्मा ने अमृत वेले दी जागरता बख्शिश कीती है। सतगुरां दी किरपा नाल इस जीवन दे सुआस चल रहे ने। जिन्ना टाइम सुआस चलते ने, गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि इन्हां सुआसां नूं तो सफलिया करना है। जीवन सफल होए दी ये निशानी है कि इस तो पहला तेरा घर शमशान घाट विच पहुँचे, तेरा शरीर शमशान घाट तक पहुँचे, तेरा मन पहला भगवान तक पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि शरीर का असली घर है शमशान घाट, मन का घर है परमेश्वर का घर। कबीर साहिब जियां ने अपने सलोकां दे अंदर एक बड़ा वचन कहा है, कबीर जा घर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे, ते घर मरहट सारखे भूत वसै तिन माहे। दुनिया दे विच नगर खेड़े शहर कस्बे तो एक बाहर जगह बनाई जाती है जिसनों शमशान घाट बोलते हैं। कबीर साहिब जी कहते, कबीर जा घर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे। जेड़े घर दे विच दो टाइम का नितनेम नहीं हुंदा, जेड़े घर दे विच परमेश्वर का नाम नहीं जपिया जा रहा, ऐसे घर नूं घर कहण दी लोड़ नहीं। कबीर साहिब जी कहंदे वो शमशान घाट ही है। ते घर मरहट सारखे भूत वसै तिन माहे। जेड़े घर दे विच जिहड़ी जगह ते नाम नहीं ना जपिया जाता, उसनों घर कहण दी की लोड़ है, वो तो शमशान घाट दे बराबर है। और जेड़े उहदे विच रहिंदे ने, जेड़े उस दे विच रहिंदे ने, उन्हां नूं बंदे कहण दी, मनुख कहण दी की लोड़ है। अगरवाइज जे नाम नहीं जप रहे तो कौन ने? ते घर मरहट सारखे भूत वसै तिन माहे। शमशान घाट दे विच भूत प्रेत ही रह रहे ने, इन्हां नूं मनुख कहण दी लोड़ नहीं है। जिहड़ी देही दे अंदर परमेश्वर का नाम नहीं जपिया जा रहा, ये देही भी एक शमशान घाट की तरह बिल्कुल सुनसान हो जाती है, सुनसरां पई रहिंदी है। इस दे अंदर देही नाम नहीं जप रही तो देही भी इनों मनुखा देही कहण की लोड़ नहीं है, ये तुरी फिरदी शमशान घाट है। ये तुरी फिरदी शमशान घाट जिहड़ी देही है, ते जो कुछ इस दे अंदर है,
ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਕੱਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਦਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੋਣੀ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਕਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਏ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ। ਇਹ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਟਾਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਥੈ ਸਤੈ ਡੂਮ ਆਕੀ, ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ
कि आपां कीर्तन करते हैं तो अपने कीर्तन करन दे नाल जिहड़ा है गुरु दरबार दे विच चढ़ावा बहुत चढ़दा है। जद इन्हां ने सोचा तो इन्हां ने गुरु साहिब जी महाराज अगे बेनती की, महाराज साडे कीर्तन करन दे नाल बहुता चढ़ावा जिहड़ा गुरु दरबार दे विच चढ़दा है ते इहदे विचों कुछ चढ़ावा तुसीं सानू भी दे दिया करो। जद इन्हें सत्ते ते बलवंडे ने गल शुरू की, गुरु साहिब जी महाराज जानी जान सन, क्योंकि गल शुरू किसी जगह तो होर की जाती है, अंत गल का किते होर जाके निबड़दा हुंदा है। जिथों शुरू की है गल उसका अंत नहीं, अंत किते जाके होर निबड़दा हुंदा है। तो कहन लगे तुसीं कहना की चाहुंदे हो? कहंदे महाराज कल नूं जो गुरु दरबार दे विच चढ़ावा होऊगा ना, जिन्ना भी होया वो तुसीं सारा सानू दे दिओ। गुरु साहिब जी महाराज कहन लगे भाई कोई गल नहीं, तुसीं गुरु घर दे कीर्तनीय सिंह हो ते जिहड़ा ये चढ़ावा है असीं तुहानूं दे देवांगे, तुसीं ले लिओ। बड़े खुश होए, बड़े खुश होए। दूसरा दिन आया, अज जिहड़ी सत्ते ते बलवंडे की सुरत पहलां लगदी हुंदी सी ना कीर्तन दे विच, बड़ा रस भरिया कीर्तन करदे सी, अज सुरत नहीं लगी। अज सुरत कित्थे है? चढ़ावे दे विच, कि किन्ना क चढ़ावा चढ़ रहा। पहलां सुरत लगदी सी गुरु दे शब्द दे विच, शब्द गाउंदे गाउंदे सत्ता ते बलवंडा इन्ने मगन हो जाते सी कि निरा अमृत ही अमृत वरसदा सी। इतना शब्द मगन होके गाउंदे सी, रस दे विच गा बैठ के गाउंदे सी। अज जिहड़ी सुरत सी वो चढ़ावे दे विच लाई गई कि चढ़ावा अज किन्ना क चढ़ रहा। अज सुरत जिहड़ी इहदे विच चली गई ते गुरु दे शब्द ते जरूर पढ़ रहे ने, पर उन्हां दे विच अज रस नहीं रहा, वो रस नहीं रहा। जदों रस ना रहा ते संगत भी बहुत घट आई ते चढ़ावा भी बहुत घट चढ़िया। जदों घट चढ़ावा चढ़िया, संगत घट आई ते गुरु इन्हां दे मन विच शंका पैदा हो गई कि गुरु ने अज संगत नूं कह दिता कि तुसीं चढ़ावा घट चढ़ाइओ। शंका, जिस दिन मनुखा जिंदगी नूं अपने गुरु दे घर ते शंका पैदा हो गया, समझ लेना कि जिंदगी खत्म है, कुछ भी नहीं है। शंका पैदा हो गया। गुरु साहिब जी महाराज नूं जाके कह लगे, महाराज तुसीं संगत नूं कह दिता भी चढ़ावा घट चढ़ाइओ, इन्ना चढ़ावा चढ़दा सी, अज चढ़ावा असीं लैणा सी ते अज ते चढ़ावा चढ़िया ही कुछ नहीं है। गुरु साहिब जी महाराज सत्ते ते बलवंडे नूं कहन लगे भाई जो तुहाडे कर्मां दे विच सी वो तुहानूं मिल गया। असीं किसी भी संगत नूं नहीं कहा कि तुसीं चढ़ावा घट चढ़ाइओ, नहीं कहा। इतना कह के ते चले गए। दूसरा दिन आया तो गुरु के घर दे विच कीर्तन करन वास्ते नहीं आए, चढ़ावा जो बहुता ना मिले। गुरु साहिब जी महाराज ने सुनेहा दे के भेजा एक सिख नूं, कहन लगे जाओ भाई उन्होंने सुनेहा लाओ कि तुसी गुरु के घर दे विच आओ, कथा कीर्तन करो। वापस मोड़ दिते, कहंदे गुरु नूं जाके कह दिओ असीं नहीं आउणा।
फिर गुरु साहिब जी महाराज ने दोबारे सिख भेजे, ना आए। गुरु साहिब जी महाराज खुद आप चले गए उन्होंने लैन वास्ते कि भाई तुसी बहुत रस भिन्ना कीर्तन करते हो, संगत सुन के तुहाडा कीर्तन खुश है, तो तुसी आके कीर्तन करो। गुरु साहिब जी महाराज नूं कहन लगे, नहीं हुण जे तुसी साडे वर्गा कोई होर लभ सकदे हो तो लभ लो, असीं नहीं आवांगे। जवाब दे दिता। तुसी ते कहंदे साडे नाल वितकरा बहुत वड्डा कर गए। जदों गुरु साहिब जी महाराज अपने सिंघासन ते आए तो गुरु साहिब जी महाराज ने एक बचन कर दिता, कहंदे भाई उन्हां दियां बहुत संगत दे सिंह भी गए, असीं खुद भी गए, पर सत्ता ते बलवंडा नहीं आए। अज तो बाद गुरु दे घर दे विच कीर्तन ते होवेगा, पर जेड़ा मनुख सत्ते ते बलवंडे दी आके साडे कोले गल करेगा ना, उहदा असीं मूँह काला करके गधे ते चढ़ा के गल विच छित्तरां दा हार पा के जुलूस कढांगे, जिहने अज तो बाद गल कीती। संगत ने सारी ने बचन सुन लिया गुरु साहिब जी महाराज का, ते सत्ते ते बलवंडे ने भी सुनेहा पहुँच गया कि गुरु साहिब जी महाराज ने यह बचन किया है। जद सत्ते ते बलवंडे का थोड़ा जिहा समा निकलिया ना, ते जेड़ा घर दे विच आके खुशियां सी, खेड़े सी, आनंद सी, वो सब दा सब खुसना शुरू हो गया, क्योंकि गुरु दे घर दा कथा कीर्तन करते सी बड़ा सोहना, संगतां दे बख्शे सी, ते संगतां दे आशीर्वाद दे नाल घरां दे विच बड़े पदार्थ सन, बड़े पदार्थ सी, पर वो सब दा सब सी जिहड़ा हौली हौली खत्म होना शुरू हो गया। सत्ते ते बलवंडे नूं इस गल दा पता लग गया कि हुण गुरु तो बगैर होर कोई रस्ता नहीं है, होर कोई रस्ता नहीं है। जद कोई रास्ता ना लभ्या तो गुरु का हुक्म सी कि जिहड़ा मनुख उन्हां दे आके गल करेगा उहदे नाल इह कीता जावेगा, काला मूँह करके छित्तरां दा हाल पा के गधे दे चढ़ा के जलूस कढ़िया जावेगा। हुण सिद्धे जाण ते किहड़ा मुखड़ा लैके गुरु दरबार दे विच जाण। फिर उन्हां नूं पता लग्या एक परोपकारी सिख रहिंदा सी, उसे शहर का वसनीक, उहदा नाम सी भाई लद्दा। भाई लद्दे का पता करके ना सत्ता ते बलवंडा भाई लद्दे दे कोल चले गए। लद्दिया, असी तेरे कोल इस वास्ते आए हैं कि तेरा जीवन जिहड़ा है वो बहुत बड़ा परोपकारी जीवन मन्निया गया है। सारी जिहड़ी दुनिया है, ये दुनिया दे विच तेरी बड़ी महिमा है कि तू हमेशा सारी जिंदगी दे विच परोपकार करता रहना है। परोपकार तक पहुँचना, उकार, मकार, उपकार अते परोपकार, 4 स्टेजां ने। पहला तो मनुख अपने परिवार का सुचज्जे ढंग दे नाल सांभ संभाल करे, उकार। फिर अपने परिवार ते उकार कीता है, परोपकार करदा है। फिर अगाह अपने नगर खेड़े दे विच मकार, नगर खेड़े दे विच भी कोई भी काम ऐसा ना करे जेड़े काम दे विच बुराई छुपी होवे। माफ़ करना, कई बारी सच इहो जिहा मनुख बोल दिंदा है कि उहदे विच भी पिछां बुराई छुपी हुंदी है, बड़ा जिहड़ा है घमसान दा जंग मच जांदा है, युद्ध हो जांदा उस दे अंदर। सच एक सच इहो जिहा बोलिया गया सी इस दुनिया ते, अंधियां दे घर अंधे जमदे ने, इक्को सच बोलिया ते सच सी। पर होया कि इसे गल पिछे महाभारत का जंग होया जिहदे विच अरबां खरबां जानां खप गईयां सी, एक गल पिछे।
अंधियां दे कर अंधे जन्मदे। सच भी इहो जिहा होवे जिहड़ा निरौल होवे, उहदे पिछे बुराई ना छुपी होवे। दुनियादारी दे विच जिमें जिमें जिंदगी का एक्सपीरियंस बंदे दा बनदा है ना, अजोके समय दे किसी बच्चे नूं ये गल समझाउण दे यतन करोगे नहीं समझेगा कि जो सच है वो तो सच है, उहदे पिछे बुराई किवें हो सकती है। जिहड़े मनुख ज़्यादातर दुनिया दे विच विचरदे ने, दुनियादारी दे विच जिमें जिमें जिंदगी का एक्सपीरियंस हुंदा है, उन्हां नूं इस गल का पता लग जाता है कि जो मनुख सच बोलदा है, हो सकता है उहदे सच दे विचों भी बुराई की बदबू आउंदी होवे। कईयां दा सच बोलना सच भी नहीं हुंदा, कईयां दा झूठ बोलना झूठ नहीं हुंदा। सो ये सारियां गल्लां मैं आप सारियां संगतां दे सामने खोल खोल बड़े वारी रखियां ने, ताकि हर एक जिहड़ा मनुख है वो गुरबाणी दे असली मंतम तो जानकार होवे, जानदा होवे सब कुछ। सच जिहड़ा है, फिर वो मनुख जिहड़ा है अपने परिवार तो अगे कोई भी कर्म अपने नगर खेड़े दे विच बुरा ना करे। जिहड़ी मनुख दी परोपकार वाली स्टेज जिथों शुरू होंदी है, वो परोपकार वाली स्टेज बाहरों नहीं शुरू होंदी, अपने घर दे विचों शुरू होंदी है। जिथे असीं रहिंदे आ, जिथे असीं बैठे हैं, उत्थों शुरू होंदी है। अपने परिवार ते ऐसा कर्म कर रहे है तो वह अगाहां फिर जाके नगर खेड़े दे विच भी भले दे चंगे कर्म, चंगा बोलना, चंगा देखना, चंगा सुनना नगर खेड़े दे विच भी। दूजा पॉइंट। तीजा हुंदा है उपकार। उपकार दे विच कह लो कि जिहड़ी पूरे दे पूरे स्टेट लैवल है, स्टेट लैवल ते भी बंदा झूठ नहीं बोलदा, झूठ नहीं बोल रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा, बुरा देख नहीं रहा। ये सारा कुछ जिहड़ा कुछ अपने परिवार दे विच कीता उही नगर खेड़े विच कीता, जो नगर खेड़े विच भलाई दे काम कीते उही इहने सारी स्टेट दे विच कीते। ते ये मनुख कित्थे पहुँच गया? तीजी जगह ते उपकार ते चौथी स्टेज है परोपकार। प्रभु पूजै सब नगर। चौथी स्टेज जिहड़ी परोपकार दी है, जिहड़ा मनुख अपने परिवार का भला करदा है, नगर खेड़े का भला करदा है, अपनी स्टेट का भला करदा है, ऐसे मनुख का जीवन है जिहड़ा वो हमेशा ही इस रास्ते ते चल पैंदा है। फिर वो किसी नूं जानदा है चाहे नहीं जानदा, कल्ले कल्ले जीव ते कल्ले कल्ले मनुख ते किसी भी स्टेट का होवे, वो हर एक मनुख का जिहड़ा है उहदे नाल रल के मनुख दे उपर परोपकार करदा रहिंदा है, उहदी मदद करदा रहिंदा है, उहनूं वस्त्र दिंदा रहिंदा है, उहनूं भोजन दिंदा रहिंदा है। ऐसे मनुख नूं ही परोपकारी कहा गया है। ऐसे मनुख नूं परोपकारी कहा जाता है। चौथी जगह ते जाके परोपकार वाली स्टेज मिलती है। इक्के दिन मनुख किसी नूं कोई बहुता धन दे के परोपकारी नहीं बन जाता। घरे जाता है, बाहर ते बड़ा परोपकारी बनया हुंदा है, घरे जाता निरा भूत प्रेत बन जाता है। घर दे ते सुख उड़ीकदे हुंदे ने कि सुख है, वह घर दे विचों 4 घंटे निकलिया, जदों घरे वग जाता सारे घर दे परिवार दे मत्थे वट पै जाता भी हुण फिर कलेश पाऊगा। ऐसा मनुख का जीवन परोपकारी नहीं हो सकता, माफ़ करना, क्योंकि परोपकार वाली स्टेज साडे घरों शुरू होनी है। लद्दा सी परोपकारी, लद्दे कोल चले गए, लद्दिया असीं ते सुन के आए हैं। कहंदे गल की हुई है जरा खोल के दसो। कहंदे असीं गुरु दे घर दे विच कीर्तन करदे सी, असीं सतगुरां तो चढ़ावा मंग लिया, चढ़ावा घट होया, असीं गुरु का दरबार छड्ड के आ गए। फिर महाराज ने सिख भेजे 2 बारी, असीं नहीं गए। महाराज जी खुद चल के आ गए, असीं गुरु साहब दे आखे लग के भी कीर्तन करन नहीं गए। ते हुण गुरु का हुक्म होया कि जेड़ा बंदा साडे कोले सत्ते ते बलवंडे दी आके गल करूगा, वो बंदे नूं असीं काला मूँह करके छित्तरां दा हार पा के गधे ते चढ़ा के उहदा जलूस कड्डांगे। भाई
ਲੱਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਜੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਲੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਦਿਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਚਨ ਕਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਧਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਖੀ ਨਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਮਗਰ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਤੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹ? ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਲੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ? ਲੱਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਲਈਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਰ ਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਵਾਰ ਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਮਗਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਲੱਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਹਾਰ ਪਾ ਲਾ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ, ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਲੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ
कहंदे महाराज हुण तुहानूं बहुती वड्डी खेचल करन दी लोड़ नहीं पैनी, ना तुहानूं गधा लियाउणा पवे, ना छत्रां दा हार तैयार करना पवे, ना किसी दा मूँह काला करना पवे महाराज, ना हुण तुहानूं नगर खेड़ियां दे विच जलूस कढना पवे, क्योंकि मैं अपने घर दे विचों चलिया ते घर दे विचों ही गधे ते चढ़ के छत्रां दा हार पा के ते काला मूँह करके मैं सारे शहर कस्बिਆਂ विच दी निकल के तुहाडे कोल आया। मैं अपना जलूस आप ही कढिया है, तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं पैनी, तुहानूं जाण दी लोड़ नहीं पैनी, मैं अपना जलूस भी आप ही कढ लिया। महाराज किरपा कर दिओ, ये लद्दे दा ते जीवन इहो जिहा ही है। एक लद्दे दी अरदास बेनती तुहाडे चरनां विच है, जो तुसी वचन कीता सी ओ ते मैं खरा उतर गया, सत्ते ते बलवंडे नूं अपने चरनां दे विच रख लो। बोलो सतनाम। ते सत्ते ते बलवंडे नूं भाई लद्दे ने सतगुरां दे चरनां दे विच रखवा दिता। कहंदे भाई करन कथा कीर्तन करन कथा कीर्तन। चंगी गल है, बहुत चंगी गल है जे करनगे ते लद्दे दा जीवन सी जिहड़ा ऐसा जीवन वाला सिख जिसनों परोपकारी जीवन कहंदे ने। परोपकारी उहनूं कहंदे ने जिहड़ा अपना सारा कुछ वार के किसे दा भला करदा होवे, उहनूं परोपकारी कहंदे ने। जिहड़ा किसे दियां सारे प्रकार दा धन दौलत किसे बारे माड़ी सोच लैके रात नूं सौ जांदा, उहदा जीवन परोपकारी नहीं बन सकदा। इहनूं परोपकारी कहंदे ने अपना घर उजाड़ के किसे दा घर वसाउणा। दुनिया दी फितरत बन गई है, किसे दा घर उजड़दा ते उजड़े, साडा वसना चाहिए, तो जीवन परोपकारी नहीं बनेगा। सतगुरु महाराज जी कहते हैं। फिर सतगुरु महाराज जी ने आप गुरु साहिब जी महाराज जी ने सत्ते ते बलवंडे दे नाम की एक वार उचारण की, जो रामकली राग दे अंदर है। सत्ते ते बलवंडे का नाम सतगुरु महाराज जी ने गुरबाणी विच दर्ज कर दिता। एक लद्दे ने, लद्दा एडा परोपकारी सिख सतगुरु महाराज जी का होना चाहिए। जे लोड़ पवे समाज दे विच लोड़ पवे गधे ते भी चढ़न वास्ते तैयार रहे, जे समाज विच लोड़ पवे छत्रां दा हार पवाउण वास्ते भी तैयार रहे, जे लोड़ पवे सिखा अपना मूँह काला करवाउण वास्ते भी तू तैयार रही। तेरा जीवन परोपकारी तां बनेगा। आ चंद पैसों के नाल किसी का जीवन परोपकारी नहीं बनने वाला, माफ़ करना। ये भाई लद्दा सी जिहड़ा, ये बड़ा बड़ा परोपकारी उन्हां दा जीवन सी। परोपकारी गुर है प्यारा, सतगुरां नूं ऐसे सिख ऐसे प्यारे बड़े प्यारे लगते ने। भाई लद्दिया वाकई तो बड़ा छोटा नहीं, बहुत बड़ा परोपकारी निकलिया। इन्हां नूं बख्शा दिता गुरु दरबार दे विच लिया के। जब भाई लद्दिया ये तो बख्शे जाने सी, अज तू भी बख्शिया गया है। तो गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन, इहो जा जीवन जिहड़ा है वो जिहड़ा मनुखता की झोली दे विच पाउण। जिहड़े नाम सिमरन बंदगी करते हैं उन्होंने इन्हां गल्लां दा पता लग जाता है। सिमरन बंदगी दे विचों सब कुछ मिलता है, वरना जे कोई सिमरन बंदगी नहीं करता तो आपां कबीर साहिब का श्लोक बचन याद रखियो। कबीर जा घर साधना सेविया हर की सेवा नाहे, ते घर मरहट सारखे भूत वसै तिन माहे। ਜਿਹੜੇ घर ਵਿੱਚ रब का नाम नहीं जपिया जाता ਉਹ घर ਨੂੰ घर ना कहो, शमशान घाट की तरह ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, ਉਹ ਨਿਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ऐसा तो सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी कहती है। गुरु साहिब जी किरपा करन, भुल्लां चुकां दी खिमा। आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तूं